Nina Seth Patni, vivacious brigade of colleagues ever ignited, dear students. I am Sunil Dutt, Assistant Professor in the Postgraduate Department of English at Govindgarh Public College, Alor, Khanna. I shall be the moderator for today's event. Extend a zealous virtual welcome to you all to Govindgarh Public College, Alor, Khanna, a living epitome of come to serve and come to learn and go to serve. Ma'am, Govindgarh Public College, Alor, Khanna is affiliated to Punjab University, Chandigarh. In a short span of 1.5 decade of its inception, it has made its mettle felt in the vicinity, and it has, to its credit, some of the position university list, be it Best NSS Unit Award, be it cultural activities. Even the ruthless COVID-19 could not dampen the spirit of GPC. Rather, it has organized various competitions, quizzes, webinars to keep the students live and ticking. Ma'am, this all had been possible due to our Reverend Principal Madam, Dr. Nina Seth Pajni, who's a perfect blend of discipline and dedication with a far-sighted and a holistic approach towards the overall grooming and mushrooming of knack in our students. They become an asset for the society. Gracious audience, I'm reminded of a maxim by Benjamin Franklin: if everyone is thinking alike, there, there are no, if everyone is thinking alike, there is no one thinking. If you wish to think out of the box, then you should first know where the box is. In continuation of webinars being organized by GPC on various topics, whereas personality, music, new education policy 2020. Today we have webinar on sharpening thinking skills, a topic rarely touched upon. To ruminate over this abstract art, we have with us an awe-inspiring elocutor and an orator, Dr. Jayanti Datta. Dr. Jayanti Datta is Deputy Director in Human Resource Development Center, Punjab University, Chandigarh. She has a long-standing experience of 2.5 decades in the field of training teachers and higher education. She about 5,000 teachers. She's also coordinated and implemented more than 100 in-service programs. Adam is a national body by Council of Scientific and Industrial Research open source drugs delivery for her short movie on tuberculosis. She's a prolific writer, contributing perennially and immensely to books, into magazines, journals, book reviews, and write-ups. She thinks and writes on variegated topics of science popularization, critical thinking, action research, and public health. Once again, I welcome you all to this voyage of thinking and learning to think, how to think. Virtual space is all yours, Jayanti ma'am, to cast a spell over the audience with your magic wand. Over to you, Jayanti ma'am. Before I hand over the space to ma'am, I have a disclaimer for the audience. Ma'am wants to have an interactive and a vivacious session. So all are besought to write their questions or apprehensions in the chat box to be taken within or at the end of the session. Over to you, Dr. Jayanti Datta. Thank you very much, Dr. Sunil Dutt. I am very happy to be here on this platform. Thank you to Dr. Nina Seth Pajni also. She is a friend, as well as we all the time whenever we are together, we are thinking of certain activities that can be done or how things can be done. And I think with Dr. Nina, we in the HRDC have asked her to be one of the delegates in the first online program that we did in HRDC. So it is, thank you for giving me this platform again, because as we were discussing, these online platforms are very good for short programs, for short idea exchange programs. And when we think that there is the problem of interaction, of course, is always there, because physically we are not in front of each other, but that hurdle can also be overcome.
So today the topic that I will be speaking on is sharpening thinking skills. We have discussed this with I have discussed this with Dr. Nina, and we thought that it would be an appropriate program for appropriate topic for the teachers as well as the students. But my main target, I would say, is the target audience today is the students. And therefore, as I was discussing with Dr. Sunil, that let us have a good and vibrant discussion here. So when the topic, which is sharpening thinking skills, it means that all of us already have thinking skills. We already have the skills of thinking. But what we are going to do today is to find out some ways of how to sharpen them. And that thing we will be maybe, I'll go on for say around 1 hour and maybe a few more minutes. And let us see that how the discussion comes up. So I would like to share now, Sunilji, and I'm sharing the content, right? Okay. Okay. So can you now see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Can you see my slide? Right. Okay. Yes, ma'am. So this is the topic that we are going to discuss, that is sharpening the thinking skills. So I always begin with certain disclaimers, and my dear students, you might have seen disclaimers everywhere. I would like also, Sunilji, taking your permission to speak in English and Hindi most probably, because most of the students here they are from North India, so we don't have any problem. Students will be more comfortable with that. Right. Yes, ma'am. So friends, हाँ जी, मेरे जितने भी इनविजिबल फ्रेंड्स यहाँ बैठे हैं उनको मैं ये पूछना चाहूंगी कि डिस्क्लेमर वर्ड आपने देखा होगा, ज्यादातर ये हम देखते हैं एडवर्टीजमेंट्स में, और एडवर्टीजमेंट्स में या जो हम सीरियल्स देखते हैं उसकी फर्स्ट स्लाइड जो होती है वो हमेशा डिस्क्लेमर की होती है, और फिल्म्स में देखते हैं हम, पॉलिसीज में, वेबसाइट्स पे, किताबों में ये सब लिखा होता है. डिस्क्लेमर मीन्स दैट यू आर टेकिंग अवे द क्लेम, राइट? So I also have certain disclaimers. First of all is whatever we are doing here is touch and go. Touch and go का मतलब यह है कि ये घंटे का एक छोटा सा डिस्कशन है जिसमें हम बहुत ज्यादा कुछ डीप भी नहीं जा सकते हैं हम इसके डिस्कशन टॉपिक के अंदर. तो ये सिर्फ हम एक स्किमिंग है, इट्स ओनली जस्ट टचिंग ऑफ द सब्जेक्ट. एंड देन मेरा जो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक डिस्कशन इनिशिएट करेंगे, हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, और सेशन खत्म हो जाने के बाद भी जो चीजें हमने यहाँ पढ़ी हैं या करी हैं या सुनी हैं, क्योंकि उनको हम कंटिन्यू करेंगे, वी विल कीप ऑन थिंकिंग अबाउट देम एंड वी विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग देम. Only then a webinar or this kind of a small session becomes successful, because otherwise it's a wastage of 1 hour, one precious hour of your life. आजकल इतने वेबिनार्स हो रहे हैं कि हम लोग बहुत सारे अटेंड भी करते रहते हैं, बट अनलेस वी जस्ट फाइल देम मेंटली प्रॉपरली, अगर हम उनको अपनी मेंटल फाइलिंग में नहीं लगाते तो वो जैसे हमारे कागज गुम हो जाते हैं. अगर हम एक कागज को ठीक से फाइल में नहीं लगाते तो वो गुम हो जाता है. उसी तरह से जब हम कोई चीज सीखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसकी भी मेंटल फाइलिंग करनी पड़ती है. अगर हम उनकी मेंटल फाइलिंग प्रॉपरली नहीं करेंगे, देन दैट थिंग, दैट आइडिया वुड ऑल्सो just vanish. So what I want you to do is, if you are sitting with a notebook and paper and pen, you can just take down some notes also. जो चीजें आपको अच्छी लग रही हैं, समझ आ रही हैं, या आप उनके ऊपर बात करना चाहते हैं, या कोई इश्यूज हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको आप लिखते भी रहिए साथ में. ये पीपीटी भी आपको मिल सकती है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है. कंटेंट जो है वो हमारी डिस्कशन में है, तो इसलिए डिस्कशन को थोड़ा थोड़ा आप नोट डाउन करते रहिए. इसको हम एक इंटरैक्टिव प्रोसेस, जैसे सुनील जी ने कहा कि हम बनाना चाहते हैं, तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि आप अपना चैट और ईमेल, चैट से भी आप कर सकते हैं, बाद में मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन चैट वुड बी अ वेरी यूजफुल दिस थिंग. इन सो वट एवर यू हैव योर आइडियाज, तो आइडिया मैं आपसे ये चाहूंगी कि आपके जो भी आइडियाज हैं, फीडबैक है, कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे आप चैट बॉक्स में लिखते रहिए. बीच बीच में मैं भी देख लूंगी, लेकिन सुनील जी बाद में मेरे को हेल्प कर देंगे, whatever is written in chat or what are the comments, right? So with this I think I am ready for, this is the background with which I prepare for my presentation. So एक और चीज आपको कहना चाहूंगी कि जब हम ये प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कुछ मैं आपको एक्सरसाइजेस भी दूंगी, छोटा मोटा कुछ करने के लिए, सोचने के लिए, वो आप सोचेंगे भी, और साथ में what will you notice is you will notice your thinking process. राइट, व्हाट हैपन्स इज, जब हम अपना कुछ भी सुनते हैं, लिखते हैं, टीवी देखते हैं, या कुछ भी हम एंटरटेनमेंट भी लेते हैं,
सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम सोचते नहीं है उसके बारे में कि हमारा थिंकिंग प्रोसेस कैसे चल रहा है, ये हमको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने एक एक्टिवली इस बात के ऊपर नजर रखनी है कि आप किस तरह से सोच रहे हैं, हाउ यू आर थिंकिंग, आपका दिमाग कैसे चल रहा है, किस तरह आपके विचार चल रहे हैं, ये सारी चीजों के ऊपर आपने एक नजर रखनी। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज थिंकिंग, राइट? So you can write about this in the chat. I'll give you 1 minute for this. I can at least two, three answers would be enough. 3-4 answers भी अगर आ जाएं तो काफी है। तो आप क्या समझते हैं कि थिंकिंग क्या है? And I don't want the correct answer that you can Google all the time, right? वो तो आप मुझे करेक्ट आंसर दे सकते हैं, पर मुझे वो आंसर चाहिए जो स्पॉन्टेनियस है, जो आपके दिमाग में अभी एकदम से आता है। What is thinking? Yes. Sunil ji, if there are some responses, you can just tell me. Yes. Yeah, sure, ma'am. Okay. Thinking is a mixed form of common sense and observation. This Nancy Gupta is saying. Thank you, Yes, Nancy. ma'am. Yes, ma'am. Right. Yes, flow of ideas in the mind. Right. Ruchika is Dr. Ruchika is saying. Yes, Dr. Ruchika Jain. And then, Hanji, rational and logical judgment. Very good. Professor Pinder Banghera Kaur. Yes, logical judgment. Then we have Lakshita Arora. It is an activity of mind. Very right. Okay. Thank you very much for attempting and for being an active participant. बिल्कुल आपकी बात ठीक है। थिंकिंग के बारे में जब हम सोचते हैं, इसकी ये बहुत तरह की हो सकती है। मतलब इसके ऊपर अगर हम थिंकिंग सिर्फ लेते हैं तो थिंकिंग को हम बहुत सारे पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम न्यूरोसाइंस के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, इसको हम थिंकिंग को हम मेडिकल पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि ब्रेन में मेडिकली थिंक कैसे करते हैं लोग, और इसको हम देख सकते हैं फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो बहुत सारे डिफरेंट व्यूज पर्सपेक्टिव से हम थिंकिंग को देख सकते हैं। लेकिन जो हम आज थिंकिंग करने जा रहे हैं, थिंकिंग के बारे में जब मैं बात कर रही हूँ, तो ये ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने जो चीजें बताई हैं, ये राविंदर सिंह जी सिंह इट्स अ मेंटल प्रोसेस। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए हैं और उन्हीं चीजों को एक निचोड़ है जो मैंने यहाँ लिख रखा है, द प्रोसेस ऑफ कंसिडरिंग और रीजनिंग अबाउट समथिंग। बहुत जैसे आप लोगों ने लिखा है कि ये एक रैशनल प्रोसेस है। इट्स अ रैशनल मीन्स इसके अंदर एक लॉजिकल, एक तर्क संगत बात आती है, तार्किक चीज होती है। ये एक फ्लो ऑफ आइडियाज है, एक्टिविटी ऑफ द माइंड है, एंड इट इज अबाउट रीजनिंग बेस्ड, विच आई हैव ऑलरेडी रिटन। इट इज रैशनल एंड लॉजिकल, एंड इट्स ऑल्सो कॉमन सेंस एंड observation is also involved in it. So I think most of you have already are on the mark when you say that thinking is rational, it is flow of ideas, it is common sense based, and it is activity of the mind. So जब भी हम बात करेंगे, जब मैं thinking बोलूंगी तो आप यही समझना उससे that it is considering or reasoning about something, right? So this is the definition, so that all of us are on the same page and we know that when I say thinking, what I am talking about, right? Now, my next question to you is, why should we think? Right? Why should we think? Why do we need to think? Thinking की जरूरत क्यों है? For example, if I ask you, do you think? What would you say? Do you think yes or no? Okay. Yes, Ruchika Jain says yes, Garima, yes, yes, yes. Everybody says yes, yes, we think. Very nice. आप अगर इतना सोचते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, थिंकिंग करते हैं. I think if you already think, then sometimes we might think that this session is not very useful to you because you are already thinking. Right. Okay. Everybody is saying yes. So let me ask you, आज आप जब सुबह उठे, मॉर्निंग में आप जब सुबह उठे तो आपको कौन सा महान विचार आया? राइट? मुझे तो ये महान विचार आया था कि मैं थोड़ी देर और सो सकती हूँ कि नहीं सो सकती. So I just want to put some ideas, to do something new. Yes, Anchal is saying to do something new. So what I'm asking is, do we think, right? Learn something new. Okay, let me, yes. what the weather would be, है ना? लोग ये मतलब सुबह उठ के हम थोड़े ना कुछ महान विचार सोचते हैं, हमें तो एक रूटीन सी चीजें याद आती हैं कि भाई उठना है, ये काम करना है, या ये काम आज दिन के रखे हैं,
या आज बहुत ठंड लग रही है, उठने का दिल नहीं कर रहा, ये सब चीजें हम सोचते हैं। तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि जब हम सुबह उठते हैं, उठ के हम अपना रूटीन काम करते हैं, हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं या किचन में जाते हैं, राइट, ओके, सो जो कुछ भी हम करते हैं, या मुझे आज ये शेड्यूल्ड है, आज बैंक जाना है, आज फीस जमा करवानी है, ये सब चीजें हमारे को आती हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा थिंकिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे आपको याद होगा कि जिस दिन जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, जब वो एक एक कदम अपना पाँव पाँव एक एक कदम रखता है, और एक जब वो चल रहा होता है एकदम, अगर आपने देखा हो एक छोटे बच्चे को जिसने अभी चलना सीखा ही है, इफ यू रिमेम्बर देन दैट चाइल्ड, अगर आप उस बच्चे को चलते हुए, या जब वो चलने की कोशिश कर रहा होता है, उस टाइम आप उसको एक गिलास मिल्क भी पकड़ा दो, तो क्या वो दूध पी भी लेगा और चल भी लेगा? I'm sure he would not be able to do it, right? लेकिन आज हम वो सब काम कर सकते हैं. Yes, Bobby Kumar is saying no, he would not be, the child would not be able to do it. Right, very right. So अगर हम, लेकिन आज तो हम वो काम कर सकते हैं, आज हम चल भी सकते हैं, रास्ता क्रॉस करते हैं, हम ट्रैफिक भी मैनेवर करते हैं, हमको कोई सामने दिख जाए उसको हम विश भी कर लेते हैं, हम मोबाइल भी अपना साथ में सुन रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें हम आज कर सकते हैं. तो हम, बट हर एक आदमी उसी बच्चे की तरह से ही शुरू हुआ था ना, जब वो पैदल चलता, जब वो चलना शुरू किया था, तो वो एक काम बस चलने के सिवाय दूसरा काम नहीं कर सकता था, लेकिन आज वो कर सकता है. तो ये यहाँ वहां से यहाँ तक कैसे पहुंचे? व्हाट इज द सीक्रेट इन इट? Probably these things have become a routine for him or her. Right? Okay. Yes, would somebody write in the chat? Yes, by conditioning and experience. Yes, conditioning, yes. Right, improving critical thinking. Okay. Right. Okay, so let me give you some more questions. For example, do you remember the first day of your cycling? The first day of your driving? The first day of your swimming? Yes. So what is the secret? जो फर्स्ट डे आपने किया था, आज आप उसको बिना सोचे करते हैं. बहुत सारे लोग, आपको याद है ना, कि ऐसे भी बोलते हैं कि ये तो ड्राइविंग इतनी अच्छी कर लेते हैं कि इनको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये तो रात को सोते हुए भी ड्राइविंग कर लेते हैं, है ना? ऐसे ऐसी चीजें हम सुनते हैं. सो व्हाट यू हैव, ऑल मेनी पीपल हैव रिटन मेनी थिंग्स, बट आई वुड लाइक टू प्लेस वन वर्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, एंड दैट इज बाय प्रैक्टिस. डू यू एग्री टू दिस? राइट, है ना? क्योंकि हम, यस, वेरी गुड, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्सेस. सो जब हम प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज को, जब हम बहुत बार कर लेते हैं उसको ना, जैसे साइकिलिंग है, अब मुझे तो याद ही नहीं है कि साइकिलिंग एक्चुअली कैसे करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही मैं साइकिल में बैठती हूँ, आई वेरी स्पॉन्टेनियसली डू इट, मुझे अपने आप से ही आ जाती है, मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे कहाँ हाथ रखना है, कहाँ पेडल चलाना है, क्या करना है. आई डोंट हैव टू थिंक, आई डू इट ऑटोमेटिकली, राइट? तो वो ऑटो, लेकिन पहले दिन ऑटोमेटिक नहीं था. जिस दिन साइकिल पहले दिन चलानी शुरू करी थी, या गाड़ी पहले दिन चलानी शुरू करी थी, उस दिन ऑटोमेटिक नहीं था, लेकिन अब ऑटोमेटिक हो गया. सो एक तो ये रूटीन थिंकिंग होती है, रूटीन वर्क है, जिसके लिए हमें थिंकिंग की कोई जरूरत नहीं. फॉर एग्जाम्पल, इवन व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग, वी डू ऑल द रूटीन थिंग्स इन द होल डे. देयर इज नो नीड टू थिंक, because we have done them so many times, we have practiced them so many times, that there is no need to think. The second kind of thinking is the chatter that keeps on in the mind. चैटर एक, आप जैसे कई लोग ये कहते हैं कि जी हम सारा दिन सोचते हैं, एक्चुअली वो सोचते नहीं. देयर इज ए चैटर इन द माइंड. माइंड में एक ना कोई एक चलती रहती है, आवाज ही चलती रहती है. अच्छा, ठंड लग रही है, चाय पीनी है, किसी से बात करनी है, मतलब kind of some kind of, there is no vacuum, all the time there is a chatter. And the third thing is reflex. I'm sure, I don't know if you already know about reflex action. No, yes, Tanu Bahari has raised a hand. Right. So would you like, I think let us, take the questions later, right? So now so मैं ये कह रही थी कि रिफ्लेक्स जो है, रिफ्लेक्स एक्शन, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, लेकिन लेट मी, जिन लोगों को नहीं मालूम उनके लिए मैं एक बार बता दूं. रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोग्रामिंग होती है, एक नेचुरल प्रोग्रामिंग है. जैसे हमारा किसी गर्म चीज पे लग जाता है, तो वो एकदम से पीछे को हम हटा लेते हैं. ये हमारी आंख के बिल्कुल पास कोई चीज आ जाती है, तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती है. ये एक प्रोग्रामिंग है जो कि अपने आप से होती है, ऑटोमेटिक होती है, इसमें हम सोचते नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हाथ में
कोई चीज आपने मान ली एक कांच का ग्लास पकड़ा है, लेकिन एकदम से गर्म चीज आपके हाथ में लगती है तो वो ग्लास छूट जाता है, क्योंकि आप ये नहीं सोचते हो कि ये ग्लास अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये गिर के टूट सकता है। उस टाइम लेटे बाद में सो राइट, सो व्हाट हैपेंस इज, सो दिस इज काइंड ऑफ रिफ्लेक्स। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। लेट अस से देयर इज अ बैट्समैन जो बैटिंग कर रहा है। जब उसके बैट के ऊपर बॉल आती है, डज द बैट्समैन थिंक? यस, व्हाट डू यू थिंक? पुट ऑन द चैट। Right, many people are saying no. Are there some people who say yes? Okay, maybe. Right, Divanshi Sharma is saying no. Right, yes. Yes. Okay, he observes before the ball is coming. Right, some people are saying yes and some people are saying no. Right, yes. Okay, Karanveer Singh says yes. Okay, actually if it would have been a physical class, I would have asked all those yes people to explain why do they think. It is yes. He didn't have time to think. Raja is saying he didn't. Yes. Thank you very much. The answer to this question is actually he thinks, but the thinking is not a thinking has been compressed. It has been compressed into a reflex action. वो थिंकिंग जो उसने करनी थी, वो थिंकिंग वो अपनी प्रैक्टिस टाइम में कर चुका है, और उस प्रैक्टिस टाइम में उसने इतनी बार प्रैक्टिस कर ली है कि अब वो जो थिंकिंग का प्रोसेस है वो इतना छोटा और इतना इंटरनलाइज हो गया है कि अब उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने और एग्जांपल्स आपको दिए कि हमें भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती जब हम यूजुअल रूटीन के काम करने लगते हैं। उसी तरह से जब मैं टीचर्स को ये पूछती हूँ, डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट डे ऑफ योर टीचिंग, सो सभी टीचर्स को वो पहला दिन अपना टीचिंग का याद होता है, बट दे डोंट रिमेम्बर द सब्सिक्वेंट डेज ऑफ देयर टीचिंग। ना बाद के दिन तो याद नहीं रहते, वो इसलिए क्योंकि जो पहला दिन था हमारी टीचिंग का, वो दिन हमने बहुत कॉन्शियसली किया था। वी वर थिंकिंग एट द टाइम, फॉर एवरी स्टेप वी वर थिंकिंग। लेकिन अब हम जो है चीजें रिफ्लेक्स के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर, जैसे एक म्यूजिशियन अपना रियाज करता है ऑल द टाइम। वो रियाज पे जब रियाज कर लेता है, प्रैक्टिस कर लेता है, तो जब वो एक्चुअल में स्टेज परफॉर्मेंस करता है तो उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको जो उसके सुर है, उसका राग है, वो अपने आप से निकलता है, क्योंकि उसने बहुत प्रैक्टिस करने के बाद उसको एक स्पॉन्टेनियस एक्शन बना लिया। ये अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर हमें हर बार सोचना पड़े कि ये चाय मैंने अपने मुंह में डालनी है, ये पानी मैंने अपने सिर में डालना है, तो हम तो बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे और हम तो बिल्कुल पागल हो जाएंगे। So it is for our sanity, it is good for our sanity that there are routine things for which we do not have to think. But the point is that there are certain things for which we really need to think. तो हमें अगर ना सोचने की आदत पड़ जाए और रूटीन में ही हम चलते जाएं, तो फिर हमारे को उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। So thinking is a very self-observing, a dialogic and conscious and active process. अब इसमें कॉन्शियस का मतलब ये है कि वो एक जागरूक प्रोसेस है, मतलब हमें पता लगता है कि हम सोच रहे हैं, वो और ऐसे नहीं हो जाता कि अपने आप ही हो गया, पता ही नहीं, फिर वो थिंकिंग नहीं है। वो एक एक्टिव प्रोसेस है, वो एक डायलॉजिक प्रोसेस। डायलॉजिक मतलब एक डायलॉग है उसके अंदर। जैसे हम क्वेश्चन सोचते हैं कि अच्छा ये कैसे हुआ, फिर हम अपने आप से सोचते हैं अच्छा इसका रीजन ये होगा, राइट। सो इट इज सेल्फ ऑब्जर्विंग। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपको सोचना है, आपको देखना है कि आपका मेंटल प्रोसेस कैसे चल रहा है। So that means that you are thinking. But if you are not self-observing, you don't even know what is happening to you, you are not aware of that, then we would say it's not thinking, right? So now my next question comes to you is, and that is from this, अगर आपको इसमें मेरे साथ कोई सहमति नहीं है तो आप फिर दोबारा से लिख सकते हैं और बाद में हम उन क्वेश्चंस को ले लेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे निकलता है वो ये है कि why should we think? अगर हमारी लाइफ बिना थिंकिंग के ही निकल रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि रूटीन के लिए तो खाना बनाना, खाना पीना, अपना सर्वाइवल, जो भी चीजें हैं, इनके लिए आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं। वो इनबिल्ट प्रोग्राम्स है, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं फॉर विद विच यू वुड बी एबल टू सर्वाइव। तो अगर हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है लाइफ गुजारने के लिए, लाइफ में सर्वाइवल के लिए, देन व्हाई देयर इज अ नीड टू थिंक? हम फिर थिंकिंग करें क्यों? व्हाई शुड वी थिंक? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। यस, कैन यू पुट सम आंसर्स ऑन द चैट नाउ?
Okay. So Nancy is saying that man and animal में कोई फर्क नहीं रहेगा if we are not thinking. Right. Thinking is for learning and creating. Ravinder Singh is saying it was learning and creating. Very right. To do work in a perfect manner. Very right. Mandeep Kaur. The part of subconscious mind which goes on continuously to create something constructive. Very good. Very good. Then thinking is the first process. We are not doing anything without thinking, right? Okay, very good. Thank you very much. Right. Let us then think that why should we think, right? Now, why should we think? पहली बात तो ये है कि क्या आप अपने आप से पूरी तरह से हैप्पी एंड सेटिस्फाइड हैं? क्या आप अपने इट हेल्प्स इन प्लानिंग, राइट? क्या आप अपने फैमिली से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं? क्या आप अपने मोहल्ले से, अपनी सोसाइटी से और अपने देश से और अपनी दुनिया से पूरी तरह से आपको लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट चीज है? I think somebody said that we need to do perfect thing, right? Mandeep I think said कि हमें परफेक्ट तरह से जो काम करना है, अगर हम परफेक्शन तक जाना चाहते हैं, परफेक्शन तक तो हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन वहां तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो जो परसूट है, परसूट ऑफ एक्सीलेंस, परसूट ऑफ परफेक्शन जो है, उसके लिए हमें सोचने की जरूरत है सो दैट वी कैन मेक अ बेटर वर्ल्ड। क्योंकि हर एक प्रोसेस जो भी है, हर एक कॉन्सेप्ट है, हर एक सिस्टम है, उन सभी सिस्टम्स को, सभी चीजों को हम और बेटर कर सकते हैं अपने सोचने के द्वारा। दूसरा है फॉर ग्रोथ ऑफ अवर एकेडमिक करियर। अगर हम ऐसे काम करते हैं जो टीचिंग के हैं, टीचिंग के, लर्निंग के, रिसर्च के, और हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है जिसमें कि एकेडमिक चीजें हैं, तो हम सोचने के बिना हमारा काम नहीं चलता, राइट? सो इफ यू आर इन सच अ प्रोफेशन लाइक टीचिंग, लर्निंग और रिसर्च, देन देयर इज नो ऑप्शन। आपका एकेडमिक सर्वाइवल स्किल होगा। एकेडमिक्स में सर्वाइवल स्किल होता है। सर्वाइवल स्किल का जैसे जंगल में आपके कुछ सर्वाइवल स्किल्स होते हैं कि जंगल में अगर आपको वो स्किल्स ना आते हो तो आप जिंदा नहीं रह सकते। उसी तरह से एकेडमिक्स में अगर आपको थिंकिंग नहीं आती है तो आप जिंदा नहीं रह सकते। और तीसरी चीज जो हमारे लिए, ये दोनों जो बातें मैंने आपको बताई, ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स जो है थोड़े दूर के हैं ना। कौन इस दुनिया को सुधारना चाहता है? कोई कहे जी मुझे दुनिया को नहीं सुधारना या मेरे को एकेडमिक्स भी नहीं करनी। देन फॉर लिविंग अ वेरी फुलफिलिंग लाइफ, ये जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है, व्हाई शुड वी थिंक, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि जब आप लाइफ के उस जगह पे पहुंचे, ये जो स्टूडेंट की मैं बात कर रही हूँ, वेयर इफ यू टेक पुअर इनिशियल डिसीजंस विदाउट थिंकिंग, तो आप अपनी सारी लाइफ बिजी रहेंगे। और बिजी किस में रहेंगे? अपनी गलतियों को सुधारने। लेकिन अगर आप गुड थिंकिंग करते हैं तो आप बेटर इनिशियल डिसीजंस ले सकते हैं, जो कि आपको लेटर लाइफ में आपको टाइम और एनर्जी फ्री अप हो जाएगी। आपको फ्री टाइम और फ्री एनर्जी मिलेगी, बिकॉज यू विल नॉट स्पेंड योर टाइम करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। एंड दैट इज वाई आई थिंक थिंकिंग हमेशा ही इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन एट दिस जंक्चर ऑफ योर लाइफ, व्हेन यू आर the whole life is in front of you, it is very very important to take to have good thinking and to take better initial decisions, right? So I think that is why all of us should be very much interested in how to think in a proper manner and how should we develop our thinking skills, right? Now the next question to you is, why don't we think enough? है ना? फिर हम सोचते क्यों नहीं है प्रॉपरली? अगर हम सोच के काम क्यों नहीं करते? हम फिर रूटीन में एक रट में पड़ जाते हैं ना। रोज का जो रूटीन होता है, हम उसी में पड़ जाते हैं, हम एनफ थिंकिंग करते नहीं। सो यहाँ पे मैंने कुछ रीजंस लिख रखे हैं, विच आर द रीजंस विच ब्लॉक अवर थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी स्टॉप्स अस फ्रॉम थिंकिंग, राइट? लेट मी आस्क यू, क्या आपने we think as per our mental, क्या लक्षिता is saying we think as per our mental capacity. एक्चुअली मेंटल कैपेसिटी कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है। आईक्यू करके एक लेवल होता है, लेकिन कैपेसिटी उस तरह से कोई डिसाइडेड नहीं होती कि हम इतना ही सोच सकते हैं, इससे आगे नहीं सोच सकते, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? सो माय पॉइंट इज दैट सोसाइटी स्टॉप्स अस फ्रॉम थिंकिंग। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। क्या आपने कभी ये बात किसी से कही है या किसी ने आपको कही हो कि ज्यादा ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, सोच के क्या हो जाएगा? मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि मैडम आप सोचते बहुत हो इसलिए आपकी सेहत नहीं बनती है। तो ये चीजें क्यों हम कहते हैं अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, या हमको क्यों लोग कहते हैं?
जब हम ये कह रहे होते हैं, और मैं ये बार बार टीचर्स को कहूंगी कि प्लीज ये बात आप अपने बच्चों को और अपने स्टूडेंट्स को कभी भी मत कहिए कि सोचो मत। ये सोचना एक बहुत अच्छी चीज होती है, और यही स्किल हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम इस बात के जरिए हम कुछ बात तो बोल रहे हैं। व्हाट इज दैट मैसेज? इनफैक्ट दैट मैसेज मीन्स what we are asking our students to do or our children to do is not to worry. हम उनको कहते हैं कि चिंता मत करो, राइट? चिंता करने से कुछ नहीं होता है। अगर आप सारा दिन चिंता करते रहोगे तो उससे कुछ नहीं निकलेगा। तो ये जो डिफरेंस है चिंता और चिंतन का, राइट? we are trapped in many things, right? Exactly as Avantika said कि हमको बहुत सारी चीजों की हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं ना, जब हम बोल तो रहे हैं हम कि वरी मत करो, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं कि आप सोचो मत। तो ये दोनों चीजों को कंफ्यूज मत करो। चिंता जो होती है, वरी जो होती है, इट इज लाइक ए वरी सर्कल। जब नेटवर्क नहीं चलता तो एक गोल गोल सर्कल चलता रहता है ना, वो वरी सर्कल होती है। वरी सर्कल का कोई अंत नहीं होता, वो गोल गोल घूमता ही रहता है, उसमें से कोई अच्छी चीज नहीं निकलती, और उससे तबीयत खराब होती है, उससे हेल्थ खराब होती है, उससे बीपी हाई होता है, हार्ट कमजोर होता है। लेकिन जब आप थिंकिंग करते हैं, जब आप सोचते हैं, जब आप चिंतन करते हैं, तो आप बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करते हैं, उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, वो आपको एक बेहतर आदमी बनाती है, और आपको बहुत जॉय मिलता है। इट्स अ वेरी जॉयस प्रोसेस, आपको आनंद मिलता है। तो कभी भी ये वाली बात मत करो कि चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता करके कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। लेकिन कोई प्रॉब्लम में पड़ जाओ, कभी कोई चीज हो, तो चिंतन करना बहुत जरूरी है, थिंकिंग करना बहुत जरूरी है। इस तरह से सोसाइटी डिस्करेजमेंट डालती है कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सो प्लीज इस चीज से हम थोड़ा बचें, एज टीचर ऑल्सो एंड एज स्टूडेंट्स ऑल्सो। एक और वर्ड बहुत ज्यादा चला हुआ है, और वो है नेगेटिव थिंकिंग। जो थिंकिंग होता है उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती है। थिंक नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती, थिंकिंग थिंकिंग होती है। उस चीज को आप कैसे यूज करते हो, या वो किस कॉन्टेक्स्ट में फंसती है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो लगती है, उसको हम कहते हैं, फिर वो नेगेटिव या पॉजिटिव बनती है। लेकिन थिंकिंग कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती है, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। और सोसाइटी और भी कई तरह से हमें सोचने से रोकती है, वो मैं आगे भी थोड़ी डिस्कस करूंगी। लेकिन और कुछ चीजें ऐसी हैं, ये सोसाइटी तो एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया जो बाहर से आपके ऊपर फोर्स आ रहा है, लेकिन हमारा अपना लेजीनेस, राइट, अपना हमारा एक आलस्य जो होता है, ये क्योंकि हम हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हमारे को फियर ऑफ एक्शन, फियर ऑफ चेंज है कि अगर हम सोचेंगे तो सोचने के बाद हमें उसको काम को करना भी पड़ेगा, तो उससे हम डरते हैं, इसलिए हम सोचना बंद कर देते हैं, और फिर हम अपने एरोगेंस में रहना चाहते हैं। दैट इज वाई एरोगेंस में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर सीन समबडी से दैट मुझे सब पता है, यहाँ पे ऐसे ही होता है, इससे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ना? ऐसे बहुत लोग आपको बोलते हैं, कई बार जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो बोलते हैं, कई बार हमारे टीचर्स भी ऐसे बोल देते हैं, और कई बार हमारे पेरेंट्स भी बोल देते हैं, और हम खुद भी एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुझे क्या पता है, मुझे ही सब कुछ पता है, तू तो इतना, तो मैंने ही तो तेरे को जन्म दिया है, तो तेरे को तो कुछ भी नहीं पता है, सब मुझे ही पता है, तेरे को किससे शादी करनी है, किससे शादी करके तू खुश रहेगा, वो मुझे मालूम है, इसलिए सारे डिसीजन मैं ही करूंगा। राइट, वी ऑलवेज सी दीज थिंग्स इन आवर सोसाइटी, and it's very common, but that is a kind of arrogance. Teachers have arrogance, parents have arrogance, people who have authority, who have power, who have position, they have arrogance, right? So as teachers we have to be very careful that we do not develop this disease. And teachers को ये disease बहुत जल्दी लग जाती है कि वो एकदम से arrogant हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि ऐसी क्लासरूम्स में बैठते हैं ना, क्लासरूम, जब हम क्लासरूम के अंदर घुसते हैं तो उस क्लासरूम के अंदर जो बच्चे बैठे होते हैं वो सब हमारे से उम्र में कम होते हैं, वो सब हमारे से अकल में भी कम होते हैं, और वो नॉलेज में, क्वालिफिकेशन में, हर चीज में कम होते हैं हमारे से। तो हमें ऐसे लगता है कि शायद जब हम 4 घंटे 5 घंटे ऐसी ऐसी क्लासरूम्स में बिताते हैं, तो जब 10 साल हमें टीचिंग में हो जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि सारी दुनिया में ही किसी को कुछ नहीं आता, सबकी अकल मेरे से कम है, सिर्फ मुझे ही सब कुछ आता है। तो इसलिए टीचर्स को बहुत जल्दी ये बीमारी लग जाती है। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स को नहीं लगेगी, है ना? स्टूडेंट्स को भी कई बार हो जाता है, उनको भी एक घमंड हो जाता है, या कोई भी चीज किसी को भी हो सकती है। लेकिन जो एरोगेंस है वो आपको सोचना रोक देती है, उसके बाद आप सोच नहीं सकते, आपको लगता है कि हमें सब कुछ आता है, और देयरफॉर देयर इज नो नीड टू थिंक, राइट? So these to Sunil Naji, would you like to stop here and ask the some questions if there are some questions, or should we continue? Yes, ma'am. Let me scroll through if there is any question.
Otherwise, we may continue. We may take. Okay, dear participants, if you have any kind of apprehension, you can put right now in the chat box if you wish. For otherwise, we may continue. Just let me know. Jayanti ma'am, Question. I Yes. request kindly continue. At the end of the Okay. session, participant may We will ask. take the question. Right. So remember your questions, please. And Okay. remember, you can note them down. We will take the questions later. So we will have enough time to discuss. Right. So don't be afraid. Okay. So these are some of the reasons that I think कि हमारे ना सोचने की, because we don't have enough thinking. These are some of the reasons that why we are doing. We are not doing enough thinking that is needed, because if we had thought enough properly, तो हमारी टीचिंग लर्निंग, हमारा रिसर्च, हमारा समाज, वो सारी चीजें थोड़ी बेहतर होती है अगर हम ढंग से सोचते। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स दैट हाउ टू थिंक, राइट। अब हाउ टू थिंक जो होता है, इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, डिफरेंट टूल्स आर देयर। फॉर एग्जांपल, आई वुड रिक्वेस्ट नाउ एवरीबडी टू राइट ऑन द चैट a game I am asking you to play. Very quickly you have to write, है ना। बहुत जल्दी से जल्दी आपने लिखना है जो भी मैं आपको बोलूंगी, और बोलने के बाद आपने इमीडिएटली हट जाना है, अपना हाथ हटा लेना है, फिर उसके बाद नहीं लिखना, राइट। सो जो मैं क्वेश्चन बोलूंगी वो क्वेश्चन नहीं लिखना है, उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, राइट। नाउ राइट द नेम ऑफ ए फ्लावर, राइट द नेम ऑफ अ कलर, राइट द नेम ऑफ ए फर्नीचर। Okay, stop writing now. Right. Thank you. Right. Now, you can see that most of the people, because it's on the chat, we can always check, and you would see that most of the people, not everybody, but most of the people have written these three things, right? Chair or table. Rose, red, chair or table. Now, don't you find it amusing that why do we write these three things? If you do it in any group, ना किसी भी ग्रुप में आप करिए, तो कम से कम, तो मैंने देखा कुछ लोगों ने ब्लैक भी लिखा है, टर्कीज भी लिखा है, लेकिन ज्यादातर लोग जो 60-70% लोग होते हैं वो यही लिखते हैं, रोज, रेड, चेयर और टेबल। व्हाई डू वी डू दिस थिंग्स? हम ये क्यों करते हैं? हम ये करते हैं, you can see that so much for thinking differently. Are we able to think in a different manner? Why aren't we able to think in a different manner? क्यों हम लोग यही चीजें लिख रहे हैं, रोज, रेड, टेबल, चेयर, ये सब क्यों लिख रहे हैं? ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग में ये सबसे ऊपर पड़ी है, सबसे सामने पड़ी है। और जो चीज, जब मैंने आपको कहा कि जल्दी जल्दी लिखो, आपके ऊपर एक प्रेशर डाल दिया टाइम का, तो हर एक आदमी ने यही, ज्यादातर जो चीजें उनके सामने पड़ी होती हैं, जब हमें टाइम की कमी होती है तो जो चीज सामने पड़ी होती है वही चीज हम निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया कि हमारी माइंड में जो चीज एकदम सामने आया वही हमने लिखी। अब ये सामने क्यों आई, या सामने क्यों पड़ी थी? ये सामने इसलिए पड़ी थी कि हम सभी जो हैं वो एक ही तरह के स्कूल्स में से पढ़े, हम एक ही स्कूल में पढ़े, हमें एक ही तरह के टीचर्स ने पढ़ा। जब हम बड़े होते हैं, जब हमारा समाजीकरण होता है, जब हम समाज में रहने लगते हैं, स्कूलों में जाने लगते हैं, 15 साल की जब हमारी स्कूलिंग होती है, तो हमें समाज के बारे में बहुत सारी चीजों का पता लगता है। एक मुहावरा है, एक प्रोवर्ब है, चाइनीज फ्रेज है, वो ये कहता है दैट इट नीड्स अ विलेज टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड, कि जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसका समाज उसको बड़ा करता है। वो समाज जो होता है वो कोई भी हो सकते हैं, उसमें टीचर्स होते हैं, मार्केट होता है, मीडिया होता है, शॉपकीपर होते हैं, एवरीबडी इज एक्चुअली ब्रिंगिंग यू अप। सो जब हम इस ऐसे समाज में बड़े होते हैं तो समाज हमें कई तरह की चीजें जो है वो समझा देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम 15 साल की स्कूलिंग कर लेते हैं, स्कूल से बाहर निकलते हैं, तो हमें बहुत फिक्स्ड आइडियाज हो जाते हैं कई चीजों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, हमें इस बारे में फिक्स्ड आइडिया हो जाता है कि एक अच्छी लड़की जो है वो कैसे कपड़े पहनती है और वो कैसा बिहेव करती है, राइट? या एक अच्छी मदर क्या होती है, या एक अच्छा हस्बैंड जो है उसका मतलब क्या होता है। So we have these very fixed ideas which have been received by us passively and which have been given to us by the society. तो ये सोसाइटी हमें देती है और हम उनको बिना सोचे ले लेते हैं।
और सोसाइटी यही चाहती है कि हम ज्यादा सोचे ना उसके बारे में और थिंकिंग डिफरेंटली ना करें। लेकिन अगर हम थिंकिंग डिफरेंटली नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा उससे? अगर हम थिंकिंग डिफरेंटली नहीं करते तो आज तक भी जो आपका स्टोन एज वाले में ही हम बैठे होते, क्योंकि स्टोन एज में वो सभी लोग एक जैसे ही सोचते थे। वो सोचते अच्छा तो चल रहा है हमारा लाइफ, हम केव्स में रहते हैं, जो भी दुनिया में जंगल में मिल जाता है उसको खाते पीते हैं और आराम से अपनी लाइफ बिताते हैं, हमारे को क्या प्रॉब्लम। बट देयर वर सम पीपल हु थॉट इन अ डिफरेंट वे, राइट, and who thought and who saw pattern, who did different things, and this is how the civilization has reached here. तो ये जो थिंकिंग डिफरेंटली वाली बात है, इसमें हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम किस तरह कौन सी फोर्सेस हैं जो हमें थिंकिंग डिफरेंटली करने से रोकती। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर मैं ये पूछूं कि भगवान राम जो हैं उनके मूछें होती, दाढ़ी या मूछें होती, तो आप मुझे क्या बताओगे कि नहीं होती। मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि नहीं जी हमने तो देखा है कि नहीं। लेकिन अगर मैं ये पूछती हूँ कि दशरथ के होती हैं, तो आप कहते हो कि हाँ दशरथ के तो होती हैं। और अगर मैं आपको ये पूछूं कि आपको कैसे पता, तो आप कहोगे जी हमने सीरियल में देखा था। अब जो आप लोग तो बहुत यंग हो, लेकिन जब हम थे तो हम क्या करते थे कि हमने तो उस टाइम सीरियल तो था नहीं, तो हमने किताब पढ़ी थी रामायण की, या तो किताब पढ़ ली या फिर हमें दादी नानी किसी ने हमें सुना दी। तो दोनों ही तरीकों में हमने अपना राम जो था खुद इमेजिन किया हुआ था। और हमारा राम बहुत डिफरेंट भी हो सकता था अगर हमने उसकी इमेज ना देखी हो, अगर हमने उसके पिक्चर्स ना देखी हो। वी कुड इमेजिन अवर ओन राम एंड दैट राम वुड बी वेरी डिफरेंट। ईच वन, हमारा हर एक का राम जो है वो अलग होगा। लेकिन जब आपको पिक्चर्स दिखा दी गई, जब आपने सीरियल देख लिया, तो सीरियल देखने के बाद अरुण गोविल के सिवाय दूसरा राम सूझता ही नहीं। आपको ध्यान भी करना हो तो वही राम आपको याद आता है। तो इस तरह से समाज जो है वो हमें कई पिक्चर्स देता है, कई इलस्ट्रेशंस देता है, कई चीजें दे देता है। रिलीजन जो है वो एक तरीका है, रिलीजन एक बहुत पक्का और स्ट्रॉन्ग तरीका है लोगों को सोचने से रोकने का। क्योंकि रिलीजन का एक और वर्ड होता है फेथ। फेथ का मतलब है विश्वास। रिलीजन फेथ पे चलता है। वो ये कहता है कि जो मैंने तुम्हें बता दी उस पर क्वेश्चन नहीं करना, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू हाउ डिड बुद्धा लुक लाइक, बुद्धा कैसे देखने में थे, तो आप कहोगे जी बुद्धा तो ऐसे हैं कि उनकी ऐसे बहुत बेनेवलेंट फेस है, इनवर्ड लुकिंग आईज है, वो इस तरह देखने में है, ध्यान मगन है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि हिस्टोरिकली बुद्धा's images were not created till 300 years of his death. बुद्धा की इमेजेस किसी कभी बनाई नहीं गई 300 साल तक। वो जब बुद्धा को दिखाना होता था, चाहे पेंटिंग्स में हो चाहे स्कल्पचर्स में हो, तो उनकी जगह पे एक पेड़ रख देते थे या एक लायन बना देते थे या कोई सिंबल बना देते थे, लेकिन वो इमेज नहीं बनाते थे। 300 साल के बाद किसी आर्टिस्ट ने बुद्धा का इमेजिनेशन सोच के और उस तरह से उसकी इमेज बनाई। अब बुद्धा तो एक हिस्टोरिकल फिगर है ना, लेकिन उसका भी कोई कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट का बनाया हुआ इमेज नहीं है। तो वो इमेज एक काल्पनिक इमेज है जिसको हमने लिया हुआ। अब हम और पास के आते हैं हिस्ट्री पे। लेट अस थिंक ऑफ गुरु नानक जी। ना गुरु नानक जी इज ओनली 550 ईयर्स ओल्ड, है ना। 550 ईयर्स तो हिस्ट्री में कुछ भी नहीं होते। और उनकी तो चीजें पड़ी हैं, उनकी सब हमें पता है कि वो कहाँ कहाँ उदासियों पे जाते थे, है ना। उनका तो बहुत जगह पे उन्होंने ट्रैवल किया है और उन सारी ट्रैवल्स में वहां पे गुरुद्वारे बने हुए हैं, वहां पे उनका सामान रखा है, उनके प्रमाण पड़े हैं और इसके ऊपर बहुत रिसर्च भी हो चुकी है। तो जब आप गुरु नानक के चित्र देखते हो, ये चित्र बनाए हैं शोभा सिंह जी। जो शोभा सिंह आर्टिस्ट है, ये अभी का है, 1970 के आसपास इसने ये जो इमेजेस हैं बनाई थी। जबकि आपको पता है कि सिखिज्म में द इमेजेस आर फॉरबिडन, आप गुरुओं की इमेज नहीं बना सकते। और तब भी जो है शोभा सिंह वाज अलाउड टू क्रिएट इमेजेस ऑफ गुरु नानक एंड अदर गुरुज ऑल्सो। तो उसने वो जो इमेज बना दी, अब हमारे दिमाग में गुरु नानक जी की वही इमेज है। लेकिन हिस्ट्री हमें बताती है कि वो जब और जगहों पे गए थे, कई जगहों पे गुरु नानक ने एक टोपी पहनी हुई, राइट। एक ऐसी टोपी जो मुसलमान जो अपने नमाज पढ़ते हैं उस टाइम पे स्कल कैप पहनते हैं, वो वैसी टोपी उन्होंने पड़ी हुई। कहीं पे उन्होंने एक शॉल ओढ़ा हुआ है जिसमें कलमे लिखे हुए, जो कुरान की आयतें होती हैं वो लिखी हुई, राइट। सो इफ दिस इज आर्टिस्ट इमेजिनेशन, दैट इज ऑल्सो आर्टिस्ट इमेजिनेशन। लेकिन वो आर्टिस्ट वो है जिसने जो गुरु नानक का कंटेम्पररी था, तो वो ज्यादा जेन्युइन है। हमारे यहाँ पे म्यूजियम में एक पेंटिंग पड़ी है जिसमें एक हेलो है। हेलो होता है एक प्रकाश,
सिर्फ एक प्रकाश है उसके अंदर और नीचे उसमें लिखा हुआ है गुरु नानक। तो मैं तो कहती हूँ कि गुरु नानक की ये छवि ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये मुझे अपना गुरु नानक सोचने की आजादी देता है। मुझे अगर सोचना है तो मैं शोभा सिंह का गुरु नानक क्यों इमेजिन करूं? आई वुड थिंक ऑफ माई ओन गुरु नानक, आई वुड क्रिएट माई ओन गुरु नानक, right? So this is what I am trying to do here is just putting in your mind that how certain things are so fixed in our mind that we think that these cannot be changed, while these are also imaginations. ये भी किसी आदमी ने सोच के ही बनाई है, ये कोई हमें ऐसे इल्हाम नहीं है, इट इज नॉट डिवाइन, वो कोई ईश्वरीय दी हुई नहीं है, देन नहीं है, ये सब भी एक तरह से इलस्ट्रेशंस है। लेकिन जब हमें रिलीजन ये कहता है कि आपने इस बारे में कुछ नहीं सोचा, राइट? अभी ये नवरात्रे गए तो मुझे कोई मदर वाज लैमेंटिंग, शी वाज सेइंग कि आजकल बच्चे जो हैं ये सब मानते नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं, इफ इट इज ये कल्चर और ट्रेडिशन का अगर हिस्सा है तो आप उसको उसी तरह से बताइए। तो वो कहने लगी कि वो मुझे कहते हैं कि हमें व्रत में ये सब जो है नवरात्रों में हमें नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए। तो मैंने कहा कि यू शुड टेल कि इसका क्या रीजन है आपके। तो उसने मुझे कहा कि इसका रीजन ये है कि वी हैव दिस वेरी सात्विक काइंड ऑफ जो आइडियाज है वो आपको आते हैं जब आप नॉनवेज नहीं खाते। तो उसने कहा कि फिर ट्यूसडे को क्यों नहीं खाने चाहिए ये बता दो। तो ट्यूसडे को क्यों नहीं खाने चाहिए, देयर इज नो लॉजिक टू इट, राइट? इफ यू हैव नो लॉजिक देन यू शुड नॉट फोर्स योर चिल्ड्रन और फोर्स एनीबडी टू फॉलो दैट विदाउट थिंकिंग, right? I'm just placing in front of you certain ideas which have been put in our mind right from our childhood and by the society, and as we grow up हमें ये लगने लगता है कि ये ऐसी चीजें हैं जो हिल नहीं सकती और फिर हम उससे अलग सोच ही नहीं सकते। तो हम थिंकिंग डिफरेंटली नहीं करते हैं, जिसका कि रिलीजन और सोसाइटी की जो चीजें होती हैं वो इतनी पक्की होती हैं कि आपको दूसरी तरह से सोचना में डर लगने लगता है। आप सोचते हो कि अगर मैं सोचना शुरू करूंगी तो ये शायद मेरे लिए नुकसानकारी हो जाए, इसलिए आप बिना सोचे ही वो चीजें वो काम करते रहते हैं, राइट? बट इफ यू आर इन एजुकेशन, इफ यू आर अ टीचर, इफ यू आर अ स्टूडेंट, इफ यू आर रीडिंग स्टडिंग, देन आई थिंक थिंकिंग करना और ये चॉइस रखना, आई डोंट माइंड इफ यू हैव दैट पिक्चर ऑफ राम इन योर माइंड, आई डोंट माइंड, बट आपको पता होने चाहिए कि ये आई हैव चोजन एन आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द, दिस इज एन इमेज विच इज एन आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेशन, ये मेरे को पता है। यू शुड चूज इट सेल्फ, चूज इट इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग इट ब्लाइंड। तो जब हम रिलीजन को ब्लाइंडली फॉलो करना सीख लेते हैं तो फिर हम दूसरी चीजों पे भी क्वेश्चन नहीं करते। समाज के जिन चीजों पे क्वेश्चन करना चाहिए उनको भी हम बिना सोचे ही लेते रहते। दैट इज द इफेक्ट। Yeah, religion also needed for, what is that question? Okay, I'll take it later. Right. So now my next question is so ये जो मैंने आपको पहली स्ट्रेटेजी क्या बताई, how to think or sharpen your thinking is thinking in a different manner. Now how do you think in a different manner? It means if you look, just see जो आपके जो भी डिसिप्लिन, whether it's science, whether it is humanities, आप देखोगे कि उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। उसका डेवलपमेंट तब हुआ है जब उसमें कोई ऐसा थिंकर आया जिसने एक नई बात कही और उसने डिफरेंट सोचा, पहले लोगों से, पुराने लोगों से डिफरेंट सोचा। हर एक डिसिप्लिन में इसके एग्जाम्पल है। मैं सिर्फ आपको एक साइकोलॉजी का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। साइकोलॉजी बहुत डिकेड्स तक, बहुत सालों तक साइकोलॉजी में सिर्फ ल्यूनेटिक्स की, पागलों की, इंसैनिटी की, डिस्टर्ब माइंड की, मेंटल प्रॉब्लम्स की ही स्टडी होती रही, क्योंकि बहुत सालों तक साइंटिस्ट और जो साइकोलॉजिस्ट थे वो यही सोचते थे कि सिर्फ यही साइकोलॉजी है जिसमें हम ये सब चीजों की स्टडी करते हैं। लेकिन देन देयर वाज अ थिंकर, देन देयर वाज अ साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम था सेलिगमैन। ही केम एंड ही सेड कि साइकोलॉजी तो प्यार की भी हो सकती है, काइंडनेस की भी हो सकती है, ग्रिट की हो सकती है, रेजिलियंस की हो सकती है, होप की हो सकती है। व्हाई डोंट वी स्टडी दीज गुड इमोशंस? And from there, a new branch of psychology has emerged, which is called positive psychology. तो अब आप देखेंगे कि पॉजिटिव साइकोलॉजी में बहुत सारी चीजों का पर काम हो रहा है, लेकिन बहुत सालों तक कभी किसी ने ये सोचा ही नहीं। But this person thought in a different way. So this is what I am trying to place before you, that don't be hurdled or hindered by what the society has been doing all these years. You have to think in a different manner, whether it is in your research, whether it is in your personal domain or any kind of thing.
you have to think in a different manner and you will find solutions. My next strategy is to be slow. Now you would say कि ये तो हमें उल्टे एडवाइस है, ये तो उल्टी एडवाइस है कि हमें तो बहुत लोग दुनिया में लोग कहते हैं कि इतना फास्ट जमाना है और जमाने के साथ चलना है तो यू हैव टू बी वेरी फास्ट, बट यू हैव टू बी एक्चुअली स्लो. क्योंकि इफ यू रियली नीड टू थिंक, देन थिंकिंग इज अ वेरी फिजिकल एक्टिविटी. थिंकिंग ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली हो जाती है. थिंकिंग के लिए आपको टाइम स्पेयर करना पड़ता, टाइम देना पड़ता. क्या आपके पास सारे दिन में आपने थिंकिंग के लिए कोई टाइम रखा हो? Right? Some people say that we do it when we go to bed at night. जब आप रात को सोते हो, क्या 10 मिनट 15 मिनट आप सारे दिन के जो भी कार्यकलाप आपने किए, जो बातें आपने की है, जो भी एक्शन आपने किए हैं, जो डिसीजंस आपने लिए हैं या देने हैं, उनके बारे में आप सोचने का टाइम है आपके पास? हम सभी कहते हैं हम बहुत बिजी हैं और हमारे को हम इतने बिजी रहते हैं और बिजी रहने को ही पता नहीं अच्छा माना जाता है. मेरे को तो ये समझ नहीं आता. और ये जो अवेयरनेस है, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने चाय पी ली और आपको पता ही नहीं लगा कि आपने चाय खत्म कर दी? चाय पी भी ली और आपको पता नहीं लगा. आप चाय भी पी रहे थे, साथ में आप लैपटॉप पे काम भी कर रहे थे. राइट? लक्षिता इज सेइंग यस, इट हैज हैपेंड टू हर. राइट? और आप साथ में आप 10 काम और भी कर रहे थे, किसी से फोन पे बात कर रहे थे, आपने चाय पी ली और आपको पता ही नहीं लगा. तो क्या होता है कि चाय की हमारी तलब जो है, हाँ कभी कभी, राइट, तलब या हमारी क्रेविंग जो है, इट डजंट गो. राइट? सो अब क्रेविंग जब आपकी जाती नहीं है ना, तलब आपकी खत्म नहीं होती, तो आप कहते हैं कि 1 कप चाय और लाओ. फिर आप 10 कप भी पी लेते हो, लेकिन आपको तलब फिर भी लगी रहती है. क्यों? बिकॉज यू हैव नॉट डन इट विद फुल अवेयरनेस, फुल माइंडफुलनेस. अवेयरनेस क्या होती है? अवेयरनेस की हिंदी होती है जागरूकता. और इसका एक वर्ड और भी है. आप देखेंगे कि टीवी पे जितने भी ये सब चलते हैं ना, जो स्पिरिचुअल चैनल्स जो है, उनके अंदर एक वर्ड बहुत बार रिपीट होता है, एंड दैट वर्ड इज चैतन्य. अब चैतन्य क्या होता है? चैतन्य एक चेत है. जैसे हम बोलते हैं ना चेता भूल गया, पंजाबी में भी हम बोलते हैं चेता भूल गया. चेता क्या होता है? चेता मीन्स इट हैज गॉन आउट ऑफ माई कॉन्शियसनेस. आई वॉज नॉट कॉन्शियस. वो जो चेतनता है, वो चेतनता, क्या आप सारा दिन उस चेतनता को महसूस करते हैं कि आप चैतन्य हैं? कि आप बेहोशी में ही अपना सारा जीवन बिता रहे हैं? कि आप जो काम कर रहे हैं आप बाद में रिकॉल भी नहीं कर सकते कि आपने क्या काम किया, क्या सुना, क्या कहा, आपको खुद भी मालूम नहीं रहता. सो अगर इस तरह से बेहोशी में ही लाइफ बितानी है, वो भी बीत जाएगी. बट इफ यू रियली वांट टू हैव अ लाइफ विच इज रियली, जिस जो चैतन्यता के साथ, चेतनता के साथ आप बिताते हैं, जिसमें आपको पता लगे कि क्या चीज हो रही है, आपको थिंकिंग प्रोसेस का अपना समझ आए, देन यू हैव टू बी स्लो. आपको स्लो होना पड़ेगा और उसके लिए आपको लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे. वो चेंजेस आप देखिए कि आप क्या चेंजेस ला सकते हैं. क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि बहुत मल्टीटास्किंग, मैं तो बहुत, कई लोग ये कहते हैं कि अरे मुझे मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी आती है, लेकिन मल्टीटास्किंग एक्चुअली जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है. जब आप बहुत सारे काम इकट्ठे खोल लेते हैं तो आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते. उससे अच्छा है कि एक काम को पूरी तरह से कंसंट्रेट करके करें, चाहे थोड़ा कम भी काम हो, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए. ना कि आप बहुत सारे काम इकट्ठे कर लें और कोई भी काम ढंग से नहीं. क्योंकि थिंकिंग जो है वो एक चीज के ऊपर, जब हम रिसर्च करते हैं, हम एक चीज को लेके ही थिंकिंग करते रहते हैं, उसी के ऊपर रिसर्च करते हैं, उसी के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके बारे में एक नया आइडिया डेवलप होता है, एक नया जनरेट होता है, कोई नई ओरिजिनल चीज जनरेट होती है. बट इफ यू डू नॉट स्पेंड एनफ टाइम थिंकिंग अबाउट वन थिंग, देन यू विल नॉट बी एबल टू थिंक इन अ प्रॉपर वे. सो यू हैव टू बी पेशेंट. आपको पेशेंट होना पड़ता है, इसके लिए बहुत धीरज रखना पड़ता है. लेकिन ये सब आप कहेंगे यही सारी चीजें हैं जो आजकल हम अपने बच्चों में भी नहीं देखते, अपने स्टूडेंट्स में भी नहीं देखते. बट आई वुड रियली लाइक टू से दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू लीड योर लाइफ. बिकॉज विदाउट थिंकिंग इफ यू लीड योर लाइफ, देन यू विल जस्ट लाइक अ, आई वुड से, एक जैसे एंट होती है, एक चींटी है, सारा दिन व्यस्त रहती है. क्या आप अपना जीवन ऐसे बिताना चाहोगे कि वो सारा दिन बिजी रहे? किस काम में बिजी है वो नहीं पता, किसके लिए बिजी है वो नहीं पता. इसमें मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ. एक प्लेटफॉर्म पे, ये एक न्यूयॉर्क के प्लेटफॉर्म की घटना है. न्यूयॉर्क में एक रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक आदमी अपना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वायलिन जो है वो बजा रहा था. अब वायलिन बजाते बजाते उसको 1 घंटा उसने बजाया वहां पे,
वायलिन। उस दिन उस प्लेटफॉर्म पे कोई 10,000 के करीब लोग आए होंगे और सब भाग भाग के अपनी ट्रेनों में चढ़ के चले गए। तो वो आदमी वहां पे 1 घंटा बजाया उसने, और उसके सामने एक कपड़ा पड़ा था, उसके ऊपर लोगों ने थोड़े पैसे डाल दिए, कोई $10 के करीब उसको मिले, और बाकी वो 2-3 लोग जो थे वो खड़े होके उसका वहां पे सुन रहे थे, बाकी सब भाग भाग के अपने चले गए। अब जब ये घटना हुई तो उसका ये था कि ये जो आदमी, ये सब लोग कहाँ जा रहे थे? ये सब लोग एक कॉन्सर्ट देखने के लिए जा रहे थे, एक म्यूजिक का प्रोग्राम देखने के लिए जा रहे थे, जहां पे कि एक्चुअली इसी आदमी ने बजाना था, और हर एक वहां पे जो सीट थी कॉन्सर्ट की वो $100 की, और यहाँ पे ये आदमी फ्री में बजा रहा था, लेकिन कोई भी आदमी यहाँ पे रुक के खड़ा नहीं हुआ, किसी ने उसको पहचाना भी नहीं कि ये कौन आदमी है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले सोनू निगम ने भी शायद ये वाला एक एक्सपेरिमेंट, सोशल एक्सपेरिमेंट यहाँ पे इंडिया में भी किया था। नाउ द पॉइंट इज दैट जब आप इस को सुनते हो, इस सोशल एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हो, जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बड़ा डर सा लगता है कि कहीं वो चीज जो मुझे चाहिए, जिसके पीछे की मैं दिन रात भाग रही हूँ, कहीं वो मेरे सामने ही तो नहीं पड़ी, मैं उसको देख नहीं पा रहा, और शायद वो मेरे सामने ही पड़ी है। ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा कैरियर है, मेरी पढ़ाई लिखाई है, ये जो इनको मैं इंजॉय क्यों नहीं कर रही? Why I'm not enjoying them? And what I am running after? But all these thoughts come to you when you have time to think. So don't try to rush from here to there. अगर आप कारों में भाग रहे हैं, मोटरसाइकिल्स पे भाग रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, ऑल द टाइम यू आर रनिंग, तो आपका जो रिसेप्शन है, देखिए थिंकिंग के थॉट्स आपको भी आते हैं, अच्छे आइडियाज आपको भी आते हैं, लेकिन अगर आपका जो डिश एंटीना है वो इतना वेवर करेगा, अगर वो इतना ज्यादा हिलता रहेगा, तो वो रिसेप्शन लेगा कैसे? सो यू हैव टू बी स्टेडी, यू हैव टू बी स्लो, सो यू हैव टू फाइंड आउट वेज, आपको खुद उसके तरीके निकालने पड़ेंगे, राइट? सो आई विल टेक ओनली a little more time, right? Now the next strategy that I would give you is use your senses, not your devices, right? Now what are the senses? We all know that we make the meaning of this world out of our senses. ये जो हमारी 5 senses हैं और ये जो हमारा brain है जो उन senses का meaning निकालता है, these are, we are endowed with this by nature. ये nature ने हमें दी, और अगर हम उनको यूज नहीं कर रहे हैं और उनकी जगह पे हम डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं, then you will not be able to think in a good manner, because that is the natural process of thinking, that we get things from our senses and then we use our brain to make meaning out of it. But if you are using your device all the time and you are not, which is feeding you, actually you would say कि device से भी तो हम senses से ही लेते हैं, but that is, I would say that the device is feeding you certain things, it is distracting you all the time. So वो जो distractions हैं, how many, I am sure that many of you might have watched this movie Jungle Book, मोगली की कहानी आपने देखी होगी। अब मोगली जो है, अब आप देखिए कि जंगल में, yes, Sunny is saying yes, so जंगल में क्या होता है कि जो सारे जानवर हैं उनको कोई ना कोई नेचर ने कोई एंडोमेंट दी हुई है, कोई ना कोई उनको किसी के नाखून बहुत तेज है, किसी के दांत बड़े तेज है, कोई बहुत तेज भाग सकता है, किसी का दिमाग, किसी का जो है वो सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा है, ये सब जो है। लेकिन ये जो बच्चा है ये इतना वल्नरेबल है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ना तो नाखून है, ना इसके तेज दांत है, ना ये भाग सकता है, ना ये सूंघ सकता है, इसके पास क्या है? ये तो इतना वल्नरेबल है, 1 मिनट में ये मर सकता है, लेकिन इसके पास एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये जंगल का राजा है, और वो है उसका दिमाग, जिससे कि वो सोच सकता है, एंड दैट इज व्हाई यू कुड सी दैट ही बिकम्स द किंग ऑफ द जंगल। बट नाउ द थिंग इज, ये कोई मोगली की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी एक्चुअली किसी और चीज की है। ये स्टोरी है how human beings have grown, how our civilization has grown. Just think कि वो स्टोन एज का आदमी जो था उसके पास क्या था? ना तो कपड़े, ना तो घर, कोई भी चीज उसके पास नहीं थी, और वहां से वो कहाँ पहुंच जाए? द मार्स तक आज हम अपना जो है मिशन भेज रहे हैं। सो वहां से यहाँ तक की व्हाट एन ऑ इंस्पायरिंग जर्नी। जस्ट थिंक दैट व्हाट काइंड ऑफ अ जर्नी इट इज। कहीं बिना किसी चीज के, बिना किसी रिसोर्स के, a naked man, a naked ape, what he had? Nothing he had, और वहां से लेके आज वो मिशन टू मार्स पे पहुंच रहा है।
So what kind of a journey he has made, and all because he has thought, because he has used his thinking process. So अब हम क्या कर रहे हैं, जो सारा दिन हम डिवाइसेस पे रहते हैं, ये बुरा क्यों? Because what happens is we have usually the brain have two kinds of functions. One is the emotional function and one is the cognitive function. कॉग्निटिव फंक्शन है जो नॉलेज बेस्ड है और जो थिंकिंग बेस्ड है. इमोशनल वो है जो हमें इमोशंस आती रहती हैं जब हम इनके ऊपर जो चीजें हम पढ़ते रहते हैं, कभी एंगर के, राइट, ऑल द मीडिया पे जो भी चीजें आती रहती है ना, एंग्री थिंग्स, वायलेंट थिंग्स, ऑल द टाइम ऐसी न्यूज सुनना या इस तरह की फीड्स देखना, या इवन वेरी एक्साइटिंग थिंग्स देखना, या फिर आप देखिए कि आपको इवन हैप्पीनेस, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ, जो हैप्पीनेस का एक मतलब स्वीटनेस है, वो जो स्वीटनेस जिसको कि एक विदाउट थिंकिंग काइंड ऑफ स्वीटनेस है, जो हमेशा आपको एक फील गुड काइंड ऑफ फीलिंग आती रहती है. सो ये सारी चीजें जब हमें आती हैं तो हम इमोशनल ब्रेन से काम करते रहते हैं और कॉग्निटिव ब्रेन को यूज नहीं करते, और इस वजह से हमारे को हमारी थिंकिंग जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है, हर्डल होती है. आपको एक जोक सुनाती हूँ. एक कैमल मदर है और एक कैमल बेबी है. तो कैमल बेबी कहता है, मदर व्हाई डू वी हैव दिस हम्प, हमारे ये हम्प क्यों? तो मदर सेज दैट वी कैन स्टोर अ लॉट ऑफ वाटर इन दिस. द बेबी सेज व्हाई डू वी हैव दिस काइंड ऑफ feet. So the mother says because we can run in the sand. So then the baby says, why do we have these long eyelashes? So the mother says that we have long eyelashes because we can go to the desert, and if there is a sandstorm, the sand would not go into our eyes. So the baby says, then what are we doing in this zoo? Right? So I don't know if you are laughing or not because I can't hear the voice of your laughter. But the point is, you can laugh also and you can cry also on this joke because it is actually on us. Are we living in a zoo? Are you living in a zoo? And would you like to pass all your life in a zoo? That is the question that you must ask yourself, right? Okay, so very quickly, I will go on to the next, and that is doubt and question. I think this is something which every teacher should understand and every student should understand. जब हम students को कहते हैं कि question करो, nobody questions. Why don't they question? Because we have never taught them how to question. सिर्फ question करो बोलने से नहीं होता, उनको पहले सिखाना पड़ेगा कि question करते कैसे. Because सारी life बचपन से हमने उनको एक ही चीज सिखाई है, finger on your lips, keep quiet, don't speak. So वही उन्होंने सीख लिया है, and now they have stopped asking questions. उनको क्वेश्चन करना आता ही नहीं है, ना तो अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, ना अपने पेरेंट्स से, ना टीचर से, ना दुनिया से, ना समाज से, और ना अपने मीडिया से. सो जब इस तरह से चीजें चलती हैं तो वो समाज किस तरह से इंप्रूव कर सकता है? आई थिंक it is a very I would say simple thing, very commonsensical things, that unless we know how to question and unless we have healthy doubts, doubt करना बुरा नहीं होता, question करना बुरा नहीं होता. As a parents, I think we should be very clear that we have to teach our children to doubt and to question. जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा ये सिखाया, दूसरों की बुराई नहीं देखनी है, दूसरों की बुराई नहीं करनी. I would say that was not a good teaching that they have given to me. और मुझे पता है कि आप सभी बच्चों को भी वही, आप सभी लोगों को भी यही शिक्षा मिली होगी कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो. बट ये इट इज नॉट अ गुड थिंग. आपको सब चीजें सुननी भी है, देखनी भी है, और क्रिटिकल थिंकिंग करके उसमें से जो चीज अच्छी है उसको लेना. ये सिखाना चाहिए था, ना कि ये कि आप देखो ही मत, कि आप नेगेटिव देखो ही मत. नेगेटिव देखना जरूरी है, समझना भी जरूरी है, हर चीज जानना जरूरी है, और उसके बाद उस डाउट को क्वेश्चन में बदलना, क्वेश्चन को रिसर्च में बदलना, रिसर्च से सॉल्यूशंस निकालना, सॉल्यूशंस को सोसाइटी में इंप्लीमेंट करना. ये सब चीजें जरूरी है जो कि हम देखते हैं जब बच्चे हमारे पास रिसर्च में आते हैं, वो क्रिटिकल थिंकिंग ही नहीं कर सकते. रिसर्च क्रिटिकल थिंकिंग के बिना नहीं होती है. जब हम उनको कहते हैं कि ये सोच के लाओ, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करके लाओ, दे लुक एट अस लाइक ब्लैंकली. दे डोंट नो व्हाट डज दैट मीन because they have never done it. Nobody has ever told them how to do it. That is very much necessary, right? And then I would say there are certain things that you have to challenge, and then this is a habit of mind. अगर आप थिंकिंग की हैबिट डाल लेंगे तो आपको थिंकिंग
कठिन नहीं लगती है, वो ऑटोमेटिक हो, इट अगेन बिकम्स एन ऑटोमेटिक थिंग दैट यू बिकम अ थिंकिंग पर्सन. यू कैन बिकम अ नॉन थिंकिंग पर्सन ऑल्सो, विच यू वुड सी द मासेस. अगर आप हमारे यहाँ पे देखो किस तरह के हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ये जो राम रहीम टाइप के जो हमारे इंसिडेंट्स होते हैं, हाउ कैन पीपल नॉट थिंक? हाउ कैन पीपल जस्ट सेंड देयर डॉटर्स अवे एंड नॉट थिंक? अगर हम, और जो अगर आप सुपरस्टिशंस की चीजें देखो कि सुपरस्टिशंस में आके लोग क्या क्या कर रहे हैं, सो यू आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द पीपल, द मासेस, दे पास देयर लाइफ विदाउट थिंकिंग. बट इफ यू इनकलकेट दिस हैबिट, अगर आप ये हैबिट बना लोगे, अपने माइंड की हैबिट बना लोगे टू थिंक, it would become very easy. You would think, you would doubt, you would question. It would not be difficult, but you have to practice. It doesn't come overnight, and it is for free. इसमें क्या पैसा लगता है? हाँ, इसमें टाइम जरूर लगता है, इसमें इन्वेस्टमेंट लगती है, इसमें एनर्जी लगती है, but it would give you a very joyous life. ये आपको इतनी आनंद का जीवन देगी, आपको पैसे भी नहीं चाहिए उस आनंद के लिए, आपको कोई पोजीशन नहीं चाहिए, आपको कोई अथॉरिटी नहीं चाहिए. यू विल बी हैप्पी एंड यू विल बी मास्टर ऑफ योर own self. So please, this is what I wanted to say. Please get back with questions, comments, feedback. अभी करने हैं अभी कर सकते हैं, बाद में पूछने हैं बाद में भी पूछ सकते हैं. Please continue with this discussion and continue with this practice. I am very happy that so many webinars are going on every day around you, and ma'am has also arranged for so many of them. But again I would say, आपने आटा लाके गूंद के रख लिया, लेकिन अगर उसको रोटी बना के खाया नहीं और खा के वो आपके शरीर में नहीं लगा, then there is no point. आप कितना भी अच्छा आटा खरीद के लाओ, लेकिन उसको आप गूंद के रख लो तो कोई पॉइंट नहीं, राइट? अनलेस इट इज, जब तक कि वो आपका खून ना बन जाए, जब तक कि वो इंटरनलाइज ना हो जाए, देयर इज नो पॉइंट इन इट. So I would just finish, stop here, and I would request everybody to kindly come up with your questions. And I have also said, do not thank me, because if you have to thank me, then you have to also tell me what are the good things that I have done and how my things can be improved. Thank you very much. So I'll now stop sharing and you can ask your questions. Yes, please. Jayanti ma'am, this is Neena Sethpajni. Yes, ma'am. Jayanti ma'am, I enjoyed your lecture. Without saying thank you, आप मुझसे क्वेश्चन ना पूछ लें क्योंकि Right. so there is a famous saying by James Allen that you are today where your thoughts have brought you, and you will be tomorrow where your thoughts take you. And perfectly आपने जो इतना अच्छा बच्चों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया है. So you might have read the Stephen Covey's book, The 7 Habits of Highly Effective People, that says that 10% of the life is made up of what happens to you, and 90% of life is decided by how you react. और जो ये 10% होता है ना, ट्रूली स्पीकिंग, इस पे ही हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता, तो 90% तो हमारे रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में निकल जाता है. And I like that we need a village to bring up a child. मतलब कि हर बंदा जो हमारी लाइफ में आता है, इवन मैं ऑफिस में बैठी हूँ, जो स्वीपर है, पियोन है, एंड ईच एंड एवरीवन, हर किसी की अपनी इम्पोर्टेंस है. हमारे ऊपर है कि हम उससे क्या सीखते हैं, क्योंकि हर बंदा हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होता है. मैं आपको बताती हूँ एक इंसिडेंस. तो 10 ईयर बैक मैं एक जगह चीफ गेस्ट बन के जाती हूँ. स्कूल में छोटे बच्चे थे, मतलब कि 250 के अराउंड हॉल में एक बच्चे बैठे थे, और वो 10th तक का स्कूल था, और वहाँ पे जो टीचर थे वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज्यादा वो शोर मचा रहे थे. एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात है. तो मुझे लगा कि इनको किसी तरह कंट्रोल करना चाहिए. जब उन्होंने मुझे कहा कि आप आके अपनी स्पीच दें, तो मैंने अपने पर्स में से 500 का नोट निकाल के ऊपर खड़ा करके ये कहा कि बताओ ये किसको चाहिए. तो एकदम से बच्चों का अटेंशन आने लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, या हमसे कुछ पूछा जाएगा, मे बी क्विज टाइप. और मैं बार बार दिखा के कह रही थी बोलो किसको चाहिए. और जब तक मैं कहती या सोचती कि ये मैं किसको दूंगी और उसके लिए मैं क्या क्वेश्चन तैयार करूं, इतने में एक छोटी बच्ची दौड़ते हुए आती है और वो मेरे हाथ से वो नोट पकड़ लेती है.
मतलब कि Right. उस चीज से, इंसिडेंट से मैंने इतना सीखा। मैंने कहा कि मैं तो ये अभी सोच रही थी कि मैं इस देने के क्या लिए क्या तैयार करूं, कि मैं किस बच्चे को दूंगी, और मेरा पर्पस वहां डिसिप्लिन क्रिएट करना और बच्चों का अटेंशन अपनी तरफ करना था कि देखो मैं स्पीच देने वाली हूँ, आप लोग चुप हो जाओ, आपके टीचर से आप लोग कंट्रोल नहीं होते। पर दूसरी तरफ मैंने क्या सीखा कि कुछ कुछ ना कुछ उस बच्चे में एक अलग था, कि एक थिंकिंग और थॉट प्रोसेस जो डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्पफुल था। मतलब कि एक थॉट आना कि वो बच्चा ही क्यों दौड़ के आया। कुछ बच्चे तो बड़े हेजिटेंट थे कि हम हाथ ऊपर करें या ना करें, ये मैडम हमसे कुछ पूछ ना ले। पर कुछ बड़े एनकरेज थे कि ठीक है, हमें ये 500 चाहिए, जो मैडम पूछती है ठीक है। पर वो जो बच्चा था उसका फोकस इतना ज्यादा था, मतलब कि एक सोचना, विचारों का जुड़ना और डिसीजन लेना, और उसके बाद क्विक एक्शन लेना कि हाँ ये मैम कह रही है जिसको चाहिए, दौड़ के मेरे हाथ से वो पकड़ने आ गई है। तो ये जो चीजें है ना कहीं मुझे ये लगा कि ये भी है कि मेंटल क्लॉक कहीं ना कहीं चलता रहता है, और हमारा इतना ज्यादा दिमाग भरा रहता है कि हम क्विक डिसीजन नहीं ले पाते। ये बात ठीक है कि कुछ भी अच्छा या बुरी थिंकिंग नहीं होती, थिंकिंग तो ठीक ही होती है, जब रेस्पॉन्ड करने लगते हैं ना तो वो नेगेटिव या पॉजिटिव बन जाती है, या मे बी गुड डिसीजन बैड डिसीजन बन जाती है। तो ये जो कनेक्टिविटी है आपने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाई है, और थैंक यू नहीं कहूंगी, मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ बैठ के। तो हम सब एक लर्निंग स्टेट में होते हैं। Right. और जो Yeah, मुझे it is. आपके चीज जो, हाँ जी बताइए। I would say it is you are very humble in saying all the time. Whenever I met you, you always say that I keep on learning, I keep on learning. बट यही बात है कि हमारे को कई लोग मतलब यहाँ पे ये इसको अच्छा भी नहीं समझते हैं, हमारे देश में इसको अच्छा नहीं समझा जाता है। कई लोग मेरे को ये कहते हैं कि और कितने दिनों तक आप सीखते ही रहोगे। अब मतलब अगर आप बड़े बन गए हो, लीडर बन गए हो, तो आपको ये बोलना नहीं चाहिए कि हम सीख रहे हैं। सो आई फाइंड इट वेरी फनी कि लोग इसको भी बुरा मानते हैं। बट मैं ये कहूंगी कि कुछ स्टूडेंट्स, हाँ जी, जो हैं वो मुझे अगर वो क्वेश्चन, आई थिंक एक क्वेश्चन आया था बीच में कोई रिलीजन को लेके। So let us see if Dr. Sunil Dutt has got some questions with him, and then we can take up. I think 10 more minutes are left, and then we can just close. Am I audible? Yes. Yes, ma'am. There is a question by Professor Rajesh Kumar. He says, what's your views regarding religion, as it is also needed for socialism and civilization, despite its blocking questions? Okay. I would say if you go into the history and if you go into the empirical aspect of religion, आप ये देखोगे कि रिलीजन ने जितना नुकसान किया है, जिसको हम बोलते हैं सिविलाइजेशनल या इसने इस लोगों को सही रास्ते पे लगाया है, ये क्लेम पूरी तरह से गलत है। Okay. So ma'am wants to say that it might have the, blocking into, but still we need to separate out that whether it does the good or the bad. Okay, shall we resume? What I what I am मतलब what I am asking, ये मेरे को जो समझ आया क्वेश्चन, वो ये कह रहे हैं कि रिलीजन हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें अच्छे रास्ते पे लगाता है, राइट? बट आई वुड से दैट दिस क्लेम इज नॉट राइट, क्योंकि वो रिलीजन नहीं लगाता है आपको अच्छे रास्ते पे। रिलीजन तो आपको बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट और नैरो करता है, और जिसकी वजह से हम इतना खून खराबा करते हैं। और आज से नहीं, ये जितने 2000 ईयर्स की हमारी हिस्ट्री आप देख लो, कि जितने भी ये जिहादी वार्स और ये सब क्रूसेड्स हुए हैं, ये सारे के सारे इसी चीज पे ही बेस्ड है। मतलब मुझे इतनी हैरानी होती है कि जो चीज रिलीजन इज सच अ फ्लिम्सी थिंग, और इसी चीज के ऊपर हम इतना ज्यादा झगड़ा करते हैं, इतना ज्यादा खून खराबा करते हैं। आई वुड रादर से लेट अस हैव साइंटिफिक टेम्पर इन इट्स प्लेस। आपको ब्यूटी चाहिए ना, आप नेचर की ब्यूटी को क्यों नहीं अप्रिशिएट, उसका रिलीजन बना लो, उसको ही समझ लो, उसको फॉलो कर लो, राइट? सो देयर आर मेनी। आप साइंस को रिलीजन बना लो ना। साइंस को मैं नहीं कहती, साइंस इज अगेन समथिंग विच वी हैव मेड अप, बट द बेसिक्स ऑफ साइंस, जो फैक्ट्स हैं, जो ट्रूथ्स हैं, जो उनको क्यों नहीं, हम उनकी ब्यूटी को हम देख के क्यों ना अच्छे बन जाए, उससे हम अपनी जो गुडनेस है उसको इन्वोक करें। व्हाट यू आर सेइंग इज रिलीजन इज नीडेड टू इन्वोक गुडनेस। आई वुड से रिलीजन ने जो काम आज तक किए हैं वो अच्छे के बजाय खराब वाले ज्यादा किए। सो वी हैव टू अगेन रीथिंक अबाउट रिलीजन ऑल्सो, because it's, I would say it's I want to
I want to add Yes, yes. something, ma'am. Yes. Like हम कहाँ पे पैदा होते हैं ये हमारे हाथ में नहीं है, किस रिलीजन में, किस कास्ट में, पर हम क्या प्रैक्टिस करते हैं ये हमारे हाथ में है। और जब हम एक लिटरेट पर्सन हो जाते हैं, एजुकेटेड हो जाते हैं, मेंटल अवेकनिंग के साथ काम करते हैं, तो हम क्या प्रैक्टिस करते हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम उस दायरे में रह के भी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। That is right. Even I would like to add into this. It's basically, it's not the religion which may be bad or good. It's all about the interpretation. Really, politics of interpretation, makes everything into a shape which is not, going well into the society. Ma'am, there is another question. Is it possible to destroy the existing thinking patterns ingrained in a person which are redundant and of no use in the present scenario? Of course. Yes, yes, बिल्कुल। ये हम अपनी थिंकिंग को शार्पन कर सकते हैं और गलत आदतों को सुधार सकते हैं, क्योंकि थिंकिंग अगेन इज अ हैबिट। सो जैसे हम हैबिट्स को सुधार सकते हैं अपनी, जैसे हम हैबिट, लेकिन वो इंक्रीमेंटल होता है। इंक्रीमेंटल का मतलब है अगर आप आज एकदम कहो, और ये मैं इसको भी नहीं पोर्ट्रे कर रही, आई वुड बी शुड बी वेरी क्लियर, ये कोई रिवॉल्यूशन की बात नहीं है कि डंडा लेके हम खड़े हो जाएं और हम झगड़ा करें कि समाज ने सब कुछ गलत किया और हम ही सब ठीक कर रहे हैं। आई एम नॉट प्रोक्लेमिंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज, जो इंक्रीमेंटल चेंजेस करके, छोटे छोटे अपने हैबिट्स में चेंज करके हम अपने थिंकिंग प्रोसेस को शार्प बना सकते हैं। जब आप उसको शार्प कर लोगे तो आपको इतनी क्लैरिटी आ जाएगी ना चीजों के अंदर। बिकॉज जैसे एक्चुअली क्या है, जो एजुकेशन का प्रोसेस है या जो रिसर्च का प्रोसेस है, मान लीजिए मैं अगर आपको ये पूछूं कि पीएचडी करके क्या होता है, पीएचडी करने से क्या होना चाहिए, पीएचडी करने से आपके दिमाग सॉर्टेड हो जाता है। आपको जो चीजें हैं, हाउ डू यू डिसाइड थिंग्स, आपको सॉर्टेडनेस आ जाती है, आपका सुलझ जाता है। लेकिन क्योंकि हम उसको सही ढंग से नहीं करते, इसलिए पीएचडी करके भी कुछ नहीं होता, और पढ़ लिख के भी। लेकिन पढ़े लिखे और अनपढ़ में यही फर्क होना चाहिए कि पढ़े लिखे का दिमाग सॉर्टेड होता है, राइट? सो दैट सॉर्टेडनेस शुड कम। वो जो सॉर्टेडनेस है उसको हमें लाना है अपनी थिंकिंग। So that thinking habit can be, of course, it can be done, and it can be done if you really try to practice. And there are many good literature available, books available, websites available through which you can learn how to think critically. And I am sure that I think teachers, और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें भी बहुत सारा क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर जोर है, which I would say that एक्चुअली वो पॉलिसी में लिखने से नहीं होता है, जब तक टीचर्स उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपने क्लासरूम्स में। तो वो हमें चाहिए कि हमारे टीचर्स को पहले क्रिटिकल थिंकिंग खुद करना है और फिर वो स्टूडेंट्स को करने के लिए एनकरेज करें। तो इससे एक तरह का कल्चर क्रिएट हो सकता है जो कल्चर बेस्ड होगा मोर, आई वुड से, ऑन सेनर थिंग्स, जिससे कि हमें ज्यादा खुशी, हमारे ऐसी सोसाइटी बनेगी जिसमें लोगों को ज्यादा खुशी मिलेगी। ये मेरा कहना है। Okay, ma'am, there is another question by Professor Bangeera Rupinder Kaur. She says, society many times control our way of thinking. What is the value of free will? Does it really exist? Or does What it is the still value? exist? What is the value of Free will? free will? Okay, right. So that is a more, I would say, philosophical question. आप ये कहना चाहते हो कि there is no free will because society is controlling us? Should I repeat the question, ma'am? Yes, yes. Society many a time controls our way of thinking. What is the value of free will? Does it still, see, many a time we may have certain, totally iconoclastic, but there are some people in the society, those who stop us not to attack that or to venture into that new thinking. This is what I suppose she's trying to ask. Does it exist or does it have any value? Madam Bagheera, you can unmute yourself and discuss what you Yes. want to. Right. That would be better, I think. Ma'am, very good afternoon. Yes, ma'am, you had absolutely understood my question. In the case when society tries to control us or control our thinking, where is this value of free will? Does it still exist? I mean, we can. हाँ जी। मतलब मैं ये समझ रही हूँ जो आप पूछ रहे हो, अगर हम समाज की चीजों से चलते हैं तो हमारा अपना वो कहाँ पे है, अपना डिसीजंस कहाँ पे है ना, तो वो तो नहीं Yes, होता ma'am, ना। absolutely. ऑफ कोर्स इफ यू आर जस्ट कंप्लाइंग, है ना, कंप्लाई कर रहे हो आप,
अगर समाज ने कह दिया कि देखो जी ऐसी यही आपका लाइफ है, पहले पढ़ लो, फिर शादी करा लो, फिर ये कर लो, फिर वो कर लो, दिस इज द वे यू गो, राइट? सो यू कंप्लाई विदाउट थिंकिंग। सो अगर वैसे ही कंप्लाई करते जाना है हर एक चीज में, है ना, जैसे उन्होंने ट्रेडिशंस बना रखे बिना सोचे और करते भी रहे ना लोग। सती प्रथा आप सोचिए, जो सती प्रथा में मतलब एक आदमी को जिंदा जलाना है, उसको कहते थे कि ये धर्म, बहुत बड़ा धर्म है, और इतना ज्यादा ब्रेन वॉश था कि वो आदमी खुद भी सोचता था कि मैं बहुत बड़ा अच्छा काम करूं। Just think of it, that how it can be done and to what extent, right? So that is what we want our students to understand कि ऐसे काम ना करो जिस काम को करने से जो अपना दिमाग तो लगाओ ना। And there is, I think, a very good quotation by Buddha, Bhagwan Buddha, and he says that believe nothing. Do not believe the scriptures. Do not believe other people, and not even you don't even believe me as a teacher. You don't need to believe me also. You think on your own, use your own common sense, and go with whatever you think is right. I think that is a very great quote. Not only that, that is a very courageous teacher who is saying this, है ना? अगर कोई टीचर ये कहता है कि तुम्हें मेरे पे भी विश्वास ना करो, तुम अपना दिमाग शार्प करो ना, तुम अपना दिमाग लगाओ. Why don't you use your own thinking? So I think that the teacher's only duty is to sharpen and to develop the thinking of the student. अगर हम उनको उतना सिखा दें, I think चाहे वो BA, BSc कुछ भी कर रहा हो, लेकिन टीचर का सिर्फ एक ही काम है कि उसको दिमाग यूज करना सिखाना. And then just lead them to the world. Thank you. यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगी. Thank you. मैम. Yes, Dr. Neena. It is saying that the best weight you will ever lose is the weight of other people's opinion of you. और जो हमेशा हमें सोशल वर्कर्स, सोशल रिफॉर्मर्स की ही क्यों जरूरत होती है कि वो आए और सती प्रथा हटा जाए, या फिर हम क्यों नहीं सोच सकते हर बंदा अपने आप में से कुरीतियों को दूर करने लगे ना, तो जो सोशल परसेप्शन है, क्या कहेंगे लोग, है ना, तो वो हम दायरे में रह के भी कर सकते हैं. अब एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में यही तो फर्क होता है ना, कि हम सोसाइटी की या विल के अकॉर्डिंगली क्यों चलना चाहते हैं, मतलब कि हम क्यों नहीं एक दायरे में रहते हुए वो सब सोसाइटी के नॉर्म्स भी फॉलो हो जाते हैं. क्योंकि ज्यादा जो हल्की रहती है वो हमारा जो 2 कानों के बीच में 6 इंच की जगह है, उसमें ही हलचल होती रहती है. ऑल द नेगेटिव थॉट की लोग कई बार वैसा कुछ नहीं सोच रहे होते, या फिर वो तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल. आजकल तो लाइफ इतनी बिजी है, कोई नहीं सोच रहा होता कि आप क्या, कब, क्यों कर रहे हैं, अनटिल अनलेस आप कुछ भी ठीक कर रहे हैं. अक्सर जो होती है चीजें होती जाती हैं, और काफी टाइम हम 90% टाइम हम इसी में निकाल देते हैं, और जो 10% ठीक सोचा हुआ है उसे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते. That is right. Thank you. I don't think there is any audible. I have one more question. Yes. Professor Sunil, I have one more question. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. My question is, see, I've read Utilitarianism of Jeremy Bentham, and I've also read Kant's The Ontology. So basically, I'm in a complete state of flux when I had read both the contrary dictums of their sayings. What they said is, in utilitarianism, you can when one person is doing something for the family, so even if he or she is doing a wrong thing, like for example, when one person is very poor and his family is going through complete starvation, and he steals or he loots a bank or whatsoever, right? So that is completely they say it's perfectly fine, people say, because he's actually feeding his family. But on the other hand, when when I read the ontology, he said it's absolutely wrong, because you cannot go against the law. That is right. Which is completely. Okay. But when on one side you are going by the you're feeding somebody, you're making somebody live. So I'm completely in a state of flux, whom to choose and what to do and what not to do, because legally we are completely bound. I hope you understand my question.
No, I don't understand because you have not asked any question. Right. My question, my question, Right. uh, my question is, ma'am, in this state of complete, Right. when you're at sea completely, when you're Then what you should do. Right. confused. Okay. If you ask Yes, me, yes. I would say, Hanji, if you ask me, this is an ethical question, philosophical ethical question. And it is perfectly all right because things are never linear. ना जैसे जैसे हम academics में भी आगे जाते हैं, जैसे जैसे हम research में आगे जाते हैं, हमें ये बात समझ आ जाती है कि things are not linear and things have layers. और दुनिया भी layered होती है और nuances होती हैं उसके अंदर, है ना? तो डायलेमा तो मेरा मतलब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स डायलेमा हमेशा ही रहेगा. थिंकिंग सॉर्टेड होने का मतलब ये नहीं है कि हमें हमेशा यस और नो का आंसर मिलता है. इट डजंट मीन लाइक दैट. आई वुड से यू हैव टू थिंक अगेन बिकॉज इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस हो सकती है वैसे जो आपने क्वेश्चन पूछा. बिकॉज एज आई सेड दैट इट इज एन एथिकल क्वेश्चन और एथिक्स में यही प्रॉब्लम है ना. व्हाई डू वी हैव दिस वैल्यू प्रॉब्लम्स. वैल्यू इश्यूज में यही प्रॉब्लम रहती है कि इसमें दोनों ही एस्पेक्ट ठीक होते हैं ना. जैसे अगर कोई आपका मर रहा है तो आपने उसके लिए दवाई की चोरी कर ली तो चोरी करना ठीक है कि आपने मरने वाले आदमी को बचा लिया कि वो ठीक है. तो ये दोनों ही इश्यूज ठीक है. अब इसके ऊपर बहस हो सकती है. ये मैंने अभी आपको ना देयर इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ एक्चुअली डीलिंग विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो हम अभी नहीं कर रहे यहाँ पे बिकॉज इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. राइट. सो आई कैन लेटर ऑन वी कैन टॉक. But what I'm suggesting is it is all right to be confused, but it is not all right to give up. कि हमने सोचना ही छोड़ दिया कि भाई मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ सोचते सोचते कंफ्यूज इसलिए मैंने छोड़ दिया. दैट इज नॉट राइट. यू शुड थिंक इवन इफ यू कैन नॉट फाइंड एनी सोल्यूशंस आउट ऑफ इट बिकॉज सोल्यूशंस भी मिलेंगे आपको कभी ना कभी लेकिन सोचना बंद करने से कभी भी नहीं मिलेगा. दैट इज माई एंड वी कैन रुपिंदर जी आई थिंक आई कैन डिस्कस इट लेटर ऑन. Okay, thank you so much, ma'am. Can I have one more question if you Yes. agree? सुनील जी अलाउ करेंगे. Yes, ma'am, sure. So, my मैम question. बंगेरा मैम आप ना सोशियो एथिकल लीगल साइको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. मे बी दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म. स्टूडेंट्स क्योंकि हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली डिस्कशन अलग होती है. Okay, So okay, it's okay. good if you may ask another question. I just वैसे comment कर you may ask her. Okay, okay, ma'am. Sorry, but I never wanted to miss this opportunity talking to Madam Yes, yes. Jayanti. Yes, please. So, Please ask. the question is there anything called perfectionism? Because we are on, everybody is like, hankering after it. Like, is there anything called perfectionism? ओके. Because पहली बात तो ये है कि जो एक्सपर्ट ये कहता है कि मुझे सारे क्वेश्चंस के जवाब आते हैं वो किसी में भी एक्सपर्ट होता नहीं है. राइट. सो इसीलिए आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन. बट इफ यू आस्क मी पर्सनली आई वुड से आई डू नॉट प्रैक्टिस परफेक्शनिज्म और आई एम वेरी मच इम्परफेक्ट एंड आई ट्राई टू डील विद इट. आई जैसे मैंने पहले भी कहा कि वी ट्राई टू गो टुवर्ड्स परफेक्शनिज्म टुवर्ड्स एक्सीलेंस. बट आई डोंट थिंक दैट इट इज अचीवेबल. इट इज नॉट अचीवेबल. लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम और बेटर बने कल से थोड़ा बेहतर हो जाए. इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट्स जिसको हम कहते हैं कि छोटा छोटा हैबिट में चेंज करना या जो गलतियां हो रही हैं उसको करेक्ट करना या पहले से कम हो जाए गलतियां वो करना. बट आई डोंट थिंक दैट perfectionism is I have seen many people who are obsessed with being perfect, but I have also seen that they are actually that doesn't help much. And that is again my personal opinion. I don't know the answer to this question. Yes, Sunil. thank you so much, ma'am. Thank you. Okay, I cannot budge from thanking you, ma'am. Still, it's being ceremonial. Still, I have to say a few words of thank. I'm reminded of a quote in Hindi. It goes like, "चिंता चिता समान." मैं कहता हूँ चिंता चिता समान जरूर है पर चिंतन नहीं करोगे तो चिता प्रतीक्षा भी कर रही है. So you need to be out of the box. Need to think about present. Professor Suni, you are not up. I think he is You are not not there. audible. चलिए मैम
Yes. मैं इसको ओवर कर देती हूँ. I enjoyed your lecture and thank you so much for sparing time. वो जो कह रहे थे मैं उसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर देती हूँ कि चिंता चिता समान है. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप फास्ट रखते हैं ना, खाने का फास्ट रखते हैं, ऐसे ऐसे आप वरी छोड़ने का भी फास्ट रखें कि मैं एक दिन वरी नहीं करूँगा. और इस तरह जैसे सात्विक खाने का फास्ट रखते हैं, ऐसे ही अपने दिमाग के लिए फास्ट रखें कि आज मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल करूँगा. प्रोफेसर सुनील दत्त, आप वापस आ गए हैं? Yes, ma'am. So there was a technical glitch. Right. ठीक है. So there was a technical glitch. Thanks a lot. And we shall, implement the things that you have taught us. We must not thank you at all. We would really like to thank you through our actions. That we would portray whatever you have taught to us. We would portray it through our actions. And you have taught us a lot to train our, thinking faculties. We must always think out of the box. I'm sure our students, as well as the teacher, might have been benefited a lot. Because of this, I would like to conclude this, literary erudition with a quotation by Malcolm Fox. He says, diversity, the art of thinking independently together. So we need all the things need to be out of the box. I must say that Newton did think about falling off the apple in a different way. We might not have the rules. Had we nowadays thought about the welfare of the society, we might not have this beautiful religion which is doing such a lot for the society. Thank you, ma'am. Thanks a lot, everyone, for such delightful feast. I must say it's for me and for everybody as well. Thank you. Thanks a lot. Right. Thank you so much. Thanks, ma'am. Right. Thank you, ma'am.